Good morning, my dear students. I am Shweta Bagel, your English teacher, and I am back with new lesson. So in the previous video, as I have told you that in the next video we will do the grammar portion of chapter first. So I am back with. So my dear students, आज हम simple present tense के बारे में पढ़ेंगे. But before moving ahead, we should know that what is the tense. आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि tense क्या होते हैं. The verb phrase which shows the time and state of an action is called the tense. And there are three types of tense: past tense, present tense and future tense. Past tense means जब हम past की बात करेंगे जिस tense में, वो past tense होगा. जो चीज़ें हो चुकी हैं जब हम उनके बारे में बताते हैं तो वो past tense हो जाता है, और जो चीज़ें चल रही हैं हम उनके बारे में बताते हैं वो present tense होता है, और future में जो होने वाला है अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो future tense होता है. और आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो आज हम चैप्टर फर्स्ट का ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो टुडेज आवर टॉपिक इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. बिफोर मूविंग अहेड, बिफोर रीडिंग अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, we have to know about some facts which are related to the simple present tense. So let's start. So first of all we will look at the singular and plural. Singular means only one person or one thing, and plural means more than one, like cat. That means we are talking about one cat. If we are talking about two cats, so we can't write it like that. We can't write two cats. It's wrong. We have to write two cats. That means we have to put s with the word. Then it's a correct sentence. So the basic thing which we have to remember is when we are talking about only one thing, that's called singular. But whenever we talk about more than one thing, more than two things, we have to add s or es with the word, and then it become plural. तो ये चीज हमें याद रखनी है. जब भी हम सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो हम उसे नॉर्मली लिख देंगे, बट whenever जब भी हम एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करेंगे वहां हम s और es जोड़ देंगे और वो प्लूरल हो जाएगा. तो ये हमें याद रखना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम वर्ब लिखेंगे तो हमें उसके साथ जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस या ईएस ऐड करना है, बट प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें एस या ईएस ऐड नहीं करना. तो ये तो हमने पढ़ा सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं. अब हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं. शी means वह, he means भी वह, but when we write she that means we are talking about a girl, and when we write he that means we are talking about a boy. And then we can write a girl name Rani, a boy name Rohan, and it, and we are talking, and we can talk about a place and a thing. So these are singular subjects. But when we are talking about more than one, means we, they, हम लिख सकते हैं गर्ल्स, सेम हम लिख सकते हैं बॉयज. जैसे वी, दे, गर्ल्स, बॉयज, तो ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल के साथ हम वर्ब को सिंपली यूज करेंगे, लाइक वी प्ले क्रिकेट. बट सिंगुलर के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस जोड़ना होगा. शी प्लेज
Now let's have a look at the definition of words. Words that tells us an action are called verbs. Words जो हमें किसी सेंटेंस में एक्शन के बारे में बताते हैं वो वर्ब कहलाते हैं. I have told you about swim, shine, like if I said I swim daily, so the swim is verb and it shows that मैं डेली स्विम करती हूँ. तो इसमें एक्शन क्या है? स्विम. तो ये हमें किससे पता चला? वर्ब से. तो ये एक्शन है जो कि वर्ब कहलाती है. एक और डेफिनेशन होती है, वर्ब्स आर आल्सो नोन एज एक्शन वर्ड्स. ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स है. तो वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं या फिर एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब भी कह सकते हैं. तो ये चीज हमें याद रखना है. किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब होते हैं. For more example, I have write here swim, shine, laugh. If I frame a sentence, so it will be I read a book. So here in this sentence, I read a book. The sentence is trying to say I read a book. That means मैं एक book पढ़ रहा हूँ. So here the read is the action word. So we can say this that read is a verb. Mostly we use verb after the subject. Here I is subject and then after the subject we have write the verb read. So that's how we can recognize the verb. So dear students, जैसा कि अभी हमने verbs के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ते हैं simple present tense, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. Simple present tense. Before moving ahead, let's have a look of this sentence. Renu plays with ball. Then the second, she eats mango. And third, we go to school. तो सबसे पहले तो हम इन सेंटेंस को समझेंगे. रेनू प्लेज विथ बॉल. रेनू बॉल के साथ खेलती है. तो यहाँ प्ले वर्ब है, रेनू सब्जेक्ट है और ये सारा ऑब्जेक्ट है. इस सेंटेंस में शी ईट्स मैंगो, शी सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है एंड मैंगो ऑब्जेक्ट है. और थर्ड सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, वो वर्ब है और ये सारा ऑब्जेक्ट है. तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अभी इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. अभी आप बस इतना समझिए. Renu a subject, the thing or the person about whom the whole sentence is talking is called subject. पूरा सेंटेंस जिस पर्सन या जिस थिंग के बारे में बात कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा. जैसे ये पूरा सेंटेंस रेनू के बारे में बात कर रहा है कि रेनू बॉल के साथ खेलती है. तो सेंटेंस किसके बारे में है? रेनू के बारे में. तो जिस भी पर्सन या थिंग के बारे में सेंटेंस होगा वो उसका सब्जेक्ट होगा. Then the word which shows action in the sentence is called verb. पूरे सेंटेंस में जो भी वर्ड उस सेंटेंस का एक्शन शो करेगा वो वर्ब कहलाएगा. अभी जब हमने वर्ब के बारे में पढ़ा तो हमने जाना वर्ब क्या होता है. पूरे सेंटेंस में जो भी एक्शन वर्ड होगा, जो भी उसके बारे में एक्शन बताएगा, सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है वो वर्ब होगा. जैसे इसमें प्ले, तो इस पूरे सेंटेंस में प्ले से हमें पता चल रहा है रेनू बॉल के साथ खेल रही है, क्या कर रही है. जो भी चीज वो कर रही है वो हमें किससे पता चल रहा है? इस वर्ब से. दैट मींस ये क्या है? वर्ब हुई है. और लास्ट, पूरे सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट. उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. इसमें रेनू के बारे में क्या बात हो रही है? वो बॉल के साथ खेल रही है. तो इसमें बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया. तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. तो ये सेंटेंस है राम लाइक्स
but here lights. So why we do that? Because Ram is a singular subject, but Riya and Tia is not singular. It's a plural subject. Means it is more than one. That's why here we write light and here we write lights. हमेशा singular subject के साथ हमें s और es ऐड करना होगा. But प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब को एज इट इज लिख देना है. उसके साथ कुछ ऐड नहीं करना है. जैसे राम सिंगुलर था तो हमने यहाँ एस ऐड किया, बट रिया एंड टिया सिंगुलर नहीं था. इट्स मोर देन सिंगल, मोर देन वन. दैट्स व्हाई वी डिडंट यूज एस. यहाँ हमने एस या यस कुछ यूज नहीं किया. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड नाउ we will talk about when we use simple present tense. We use simple present tense in our daily routine, and when we talk about some habitual things, we use simple present tense. जब भी हम अपनी डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे, वहाँ भी हम simple present tense का यूज करेंगे. जब भी हम कोई बेसिक चीजें बताएंगे, वहाँ simple present tense का यूज होगा. Now here are exercise in our book which is related to simple present tense. So let's do it. So here is the exercise which we will do. The first one is complete these sentences using the correct words from those given in the brackets. Brackets में ये verb दी हुई है, इनमें से जो correct है उसे हमें right mark करना है. Monkeys eats bananas. जब monkeys है that means it's a plural, तो हम यहाँ ईट पर राइट मार्क कर देंगे. मंकीज ईट बनानास. देन नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एवरी डे द एलिफेंट्स हैव अ बाथ इन द रिवर. तो इसमें एलिफेंट्स के बारे में बात हो रही. दैट मीन्स इट्स अ प्लूरल फॉर्म. तो यहाँ हम हैव का यूज करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस होगा ऑलमोस्ट एवरी डे the elephants have a bath in the river. Then the third, the boys is scared. तो इसमें क्या आएगा? are और is. boys है means ये plural है, तो इसमें हम are का यूज करेंगे. Then fourth, my father is a doctor. father singular है, ये plural word नहीं है, तो यहाँ हम इसका यूज करेंगे. देन नेक्स्ट, वी बियर्स वुलन क्लॉथ इन विंटर. जब वी है तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम इसका वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे. तो यहाँ हम लिखेंगे वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है fill in the blanks with the correct form of verbs given in bracket. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है हमें. ब्रैकेट्स में ये वर्ब दी हुई है, इनका करेक्ट फॉर्म इस ब्लैंक स्पेस में हमें फिल करना है. द सन डॉट 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 ब्राइटली. तो इसमें हमें शाइन तो लिखना, बट शाइन के साथ हम एस ऐड करेंगे. क्यों? बिकॉज सन इज सिंगुलर. द सेकेंड, द बेबी डॉट 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 इन हिज क्रैडल. तो इसमें क्या आएगा? द बेबी सिंगुलर है, तो स्लीप के साथ भी हमें एस यूज करना होगा. द बेबी स्लीप. देन द थर्ड, द चिल्ड्रन डॉट 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 टू द पार्क इन द इवनिंग. तो चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ वर्ब का हमें सिंगुलर फॉर्म यूज करना है. तो इसमें हम लिखेंगे द चिल्ड्रन गो टू द पार्क इन द इवनिंग. देन फोर्थ, द क्लास डॉट 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 एट 10 AM. तो इसमें क्या आएगा? द क्लास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करना होगा. सो वी विल राइट स्टार्ट. क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM. देन द लास्ट, एलिफेंट्स डॉट 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 लॉन्ग ट्रंक. तो इसमें ये हैज है, हैज का प्लूरल फॉर्म होता है हैव. एलिफेंट्स
जब एलिफेंट्स में एस लगा है दैट मीन्स इट्स अ मोर देन वन, इट्स अ प्लूरल थिंग. सो वी विल यूज द एलिफेंट्स हैव लॉन्ग trunks. So the exercise is complete. So here is the one another question. Match correctly and make sentences. यहाँ हमें इनको करेक्टली मैच करना है और जो परफेक्ट सेंटेंस है वो बनाना है. शी के साथ हम हैज यूज करेंगे, दे के साथ हैव, आई के साथ भी हैव और वी के साथ हम हैव यूज करेंगे. शी हैज अ ह्यूज डॉग. दे हैव अ मैंगो ट्री इन देयर गार्डन. आई के साथ हैव यूज होगा, मैंने आपको अभी समझाया. आई और यू के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं. आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल एंड वी हैव मैनी काइट्स. तो इस तरह से ये सेंटेंस को हमें लिखना है. सो ये चैप्टर और एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. So my dear students, फर्स्ट और चैप्टर सेकंड पढ़ लिया. चैप्टर फर्स्ट द गिविंग ट्री, इसको हमने रीड किया, इसके वर्ड मीनिंग हमने रीड किए, देन एमसीक्यूज किए और फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए. सेकंड वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा ग्रैनी सारी और इसके एमसीक्यूज भी किए, क्वेश्चन आंसर्स भी किए और वर्ड मीनिंग भी हमने कर लिए. और आज के वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का ग्रामर पोर्शन पढ़ा और नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का ग्रामर पोर्शन करेंगे. एंड नो नीड टू राइट द ग्रामर पोर्शन इन योर नोटबुक, जस्ट फिल इट इन योर book. Same thing you have to do in second chapter. Only write word meaning and question answers in your note. That's all for today. Now you have to revise simple present tense, and if you are facing any problem then you can contact me. And now wait for next video. Till then revise the chapter and maybe we can take a test. So be prepared for it.